हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। The feature of good governance. What is the feature of good governance here? There is the most important here. The next important question is the discussion on the good governance is what are the basic feature of element at good governance. There is a most important question here. A number of report and study have sought to identify a number of feature. In the Chimes of Kautilya, for instance, of flowing feature form it part of good governance. The Kautilya say there are four features arrive there. Kautilya according the first year law and order. There is the most important feature of good governance: law and order maintenance. People carrying out administration, and third is justice and rationality as a basis of decision. And the last year, corruption-free governance. There is the most important here. The corruption-free governance is the most important for the any state. The World Bank, it is a report of 1989 and 1992. The Organization for Economical Cooperation and Development. It means OECD. The Commission on Global Governance, 1995, United Nations Development of Program, UNDP. The 1997 have all dealt with the attribute of a good governance extensive. The concern of the good governance has been to very clearly voiced in the Asian Development Based Report in a shape of following question. What is the question here? The most important question arrive here. The first question is here: do people fully participate in a governance? A second question: are you people fully informed? And third is: do people make a decision, or can be they at least hold the decision makers accountable? And the next year, are the women equal partner with the man and the governance? And the next year, are the need of the poor and disadvantaged meet? And next year, are the people's human right guaranteed? And next year, are the need of future generation take into the account in the current policy? And the last year, do the people own their structure of governance? The first topic here is accountability. There is the most important feature here, accountability. It has been impossible to the almost uniformly that is a government has to be based on the principle of accountability those who are responsible for it. Accountability is a fact impulse that is the bureaucracy should be answerable for what they do or do not do. This is started to be administered in the parliamentary system through the question, debate, discussion, hurgatories, and the approvals committees and such that a method of parliament. The executive is to be responsive to the people through their representatives. It is, however, also true that his mechanism has increasingly proved to be ineffective for reasons of decline in the quality and character of debate and the representatives transformation and parliamentary system into a cabinet system of government and criminalizations of politics and fragmentation of society and politics. The second here, accountability is also ensured through the judicial review of their government decision or law. The citizens are also seeking a judicial intervention through the public interest litigation, means PIL, for a promote to action on content issue affecting the common life. Such a practice is directly or indirectly in the several countries like New Zealand, Canada, Australia, and India. Recently, a more effective mode of public accountability is their system of citizen character. The idea is a change to the bureaucratic culture in include people-friendly attitude instead of partial and indifferent, casual and causing of behavior to be a citizens. The old feudal value must give to the pace to the modern democratic value in a bureaucracy. On the accountable system of government, thus the purpose there is a following functional and behavioral trait of the civil servant. The first year achievement and oriental behavior. Second judicial use of the authorities. And the next the pursuit of the happiness of the people. And the next is here use of reason and experience as the basis of decision. And the next is shrinking of the work to be identified and punished.
time bonded to implementation of policy and plan. A strength of character intelligence is a prevalence and extensivity of civil servant. The next year is the uprightness of friendliness and the firmness of the devotion of the dealings with the orders. And next year capacity for doing a work which should be a supplementary by skill in action and the quotient for a perfection. In every country, the number of institutional and the legal agreement has been made to be sure of prevalence of characteristics on the accountable administration. For example, in India, setting up to institutions like a Central Vigilance Commission and the National Commission for Women, Scheduled Tribes, Scheduled Caste, Minorities, Backward Class, and the National Labour Commission, National Commission for Human Rights and Minorities, and the Controllers and Authority General of India are some each effective step of administration, social, legal, constitutional, and systematic commitment and the bureaucracy. It is seek to remove the tendency of the administrative bias as a corruption, alienation, and secrecy. The aim is to be a make administration poor sensitive, gender sensitive, and more sensitive to the demand and is a revenance of public. The purpose to is a prevent of undesirable act and behavior and to be a promote efficiency and integrated of public servant. The government have also initiated a number of other measures to see the actually operation of accountability and administration. Here the most important a reference can be made of flowing here of management by the objective means MBO. The machinery for the redress of public grievances and recognition of the right to information, and next year e-governance and information technology use, and the next year democratization and decentralization of power, and next year empowerment of the marginalized and groups especially of women, and fair competitions and between to the public and private sector, and the next year review of a number of law rules and regulation. In order to establish accountability at the level of local government and empowerment of the is a marginalized of group, India Parliament passed a 73 article and 74 Amendment Act of 1992, providing for among two other thinking 33.3% reservation for the women and scheduled caste and tribe to proportion to the population. I will discuss already a preview chapter and decentralization, development planning, enhancing the finance ability through the increasing of financial power and support to be a local body. Decentralization and is a decriminalization thus are the made of the is a benchmark of development administration. Moreover, 79 of ministries and department of the central government are the operating the structure of citizens and character. The character is account of here time limit and standard for a service and avenues of the grievance and the redressal, and their last year the putting in the place is a monitoring system and independent scrutiny of the implementation and their charter. A number of state and union government have created a special agency and the unit of deal with the grievances of a public emanating mainly from known is a disability of the officially absence of time frame for the disposal of the case and unsympathetic is the attitude of public official. His accountability is related to the system of the openness and transparency. If their decisions are not be taken in the transparent and the open manner, one can question the improbability and such a decision, and there shall be a much less place for the federalisms and the nepotism and the pesticides in their treatment of citizens. India Parliament has included right to information act of facilitate openness is a government. Central ministries and department has set up to the facilitation of counter with a wild publicity for the purpose of information and making a complaints. यहाँ पर जो हमारा चैप्टर आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर अच्छे गवर्नेंस के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। उसका अगला पॉइंट जो है एक अच्छे शासन की क्या विशेषता हो सकती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है आपके समक्ष कि एक अच्छे शासन की क्या विशेषता होनी चाहिए। देखिए, जब तक आप
किसी भी गवर्नेंस के बारे में यानी शासन के बारे में उसकी विशेषता नहीं जानिएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अच्छे गवर्नेंस कहते किसको है, यानी गुड गवर्नेंस होता क्या है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आया है। कहते हैं अगला प्रश्न यही है कि अच्छे शासन की मूल्य विशेषता तत्व क्या हो सकती है। बहुत सी रिपोर्ट और अध्ययन से अनेक विशेषताएं बताई गई है। उदाहरण के तौर पर जो है कौटिल्य की पद्धति में निम्न विशेषताओं एक अच्छे शासन का निर्णय करती है। देखिए कौटिल्य के द्वारा भी जो है अच्छे शासन करने की पद्धतियों को विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया था और कौटिल्य ने साफ शब्दों में इस बात को कहा था कि कानून एवं व्यवस्था। देखिए कोई भी अच्छा गवर्नेंस के लिए जो जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है वो है लॉ एंड ऑर्डर। कहते हैं लॉ ऑर्डर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे जो होती है सभी के लिए कानून व्यवस्था बनाना ही अच्छे गवर्नेंस का सबसे अच्छा विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। दूसरी बात आती है लोक कल्याणकारी प्रशासन। देखिए कोई भी शासन तभी शासन करता है जब लोगों के कल्याण की बातें सोचता हो। अगर वो लोगों के कल्याण की बातें नहीं सोचता है तो उसकी शासन जो है उसकी कदम उखड़ जाती है। कहते हैं किसी को लालच दे देना या किसी के साथ जो है सिर्फ उसका फ़ायदा उठा लेना, ये प्रशासन की कोई भी नीति नहीं चलती है, क्योंकि हमारा भारत जो है पता है लोकतांत्रिक है और यहाँ पर लोगों की राज चलती है, न कि सरकार की राज चलती है। सरकार अगर जनता के लिए अच्छा से अच्छा करती है तो सरकार को जो है जनता सदैव ही चुनती है और सदैव ही उसको अपने पलकों पर बैठाती भी है। न्याय व तर्क के आधार पर निर्णय, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में जो है कोई भी चीज़ न्याय व तर्क के आधार पर ही निर्णय लेने का प्रावधान एक अच्छे गवर्नेंस के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। देखिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई भी अगर वहाँ पर गवर्नेंस गुड गवर्नेंस चाहिए तो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। कहते हैं हमारे देश को खोखला जो कर रहा है भ्रष्टाचार ही है। कहते हैं बहुत से सरकार आई और भ्रष्टाचार पे अपना जो है बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ये भ्रष्टाचार को जो है ख़त्म करना संभव ही नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार कहते हैं आज हर एक राजनीतिक नेताओं में भरे पड़े हैं, बड़े बड़े अफसरों में भरे पड़े हैं। कहते हैं जिसके पास जितना पैसा है उतना ही वो पैसे के लिए ललायित है। तो इस वजह से भ्रष्टाचार जो है मुक्त होना संभव ही नहीं लगता है, बहुत ही दुष्कर कार्य है। कहते हैं बहुत से जो है मैंने देखा है, बहुत से प्रचार देखे हैं, बहुत से लोगों की जो है कदम उठाते हुए देखा है, लेकिन इस पर जो है कोई भी कदम जो है कभी साकार हो ये संभव नहीं हुआ है अभी तक। विश्व बैंक ने अपनी 1989 में और 1992 के रिपोर्ट में जो है एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है OECD, कमीशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस या 1995, यूनिट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP 1997 जो आदि में अच्छे शासन गुणों को विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कोशिश भी किया है। यानी विश्व बैंक ने हर चीज़ों को जो है अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है कि अच्छे गवर्नर की क्या क्या गुण हो सकते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा एक पॉइंट, अच्छे शासन कार्य के लिए एसोसिएशन डेवलपमेंट वैश्विक रिपोर्ट के अंदर निम्नलिखित प्रश्नों के रूप में साफ साफ रख दिया गया था और ये सारे प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। पहला तो यही था कि क्या लोग शासन से पूरी तरह से भागीदारी करते हैं, क्या लोगों का जो इंपॉर्टेंट अपना भागीदारी शासन में रहता है, क्या लोग तक सभी जानकारी पहुंच पाती है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या लोग निर्णय ले सकते हैं अथवा क्या वे निर्णय लेने वाले को दायित्व बनाए रख सकते हैं, क्या शासन में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त हुआ है, क्या गरीब और पिछड़े लोगों की जरूरत पूरी होती है, क्या मानवाधिकार की गारंटी दी गई है, क्या वर्तमान नीतियों में भावी पीढ़ियों की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। ये सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है एशियन डेवलपमेंट वैश्विक रिपोर्ट के अंतर्गत पूछा गया था और ये प्रश्न बहुत ही गंभीर है और इसको हर एक गवर्नेंस जो अच्छे गवर्नेंस की दावा करते हैं उनको इस सारे प्रश्नों का उत्तर जो है सही सही देने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर पहली पॉइंट के रूप में अगर देखा जाए तो उत्तरदायित्व है। आखिर उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है। सर्वसम्मति से इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि शासन उन लोगों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए शासन में उनके उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाते हैं जो अच्छे पोजीशन पे हैं। मेरा तो ये भी मानना है कि जो अच्छे पोजीशन पे होते हैं उनको जो है देशव्यापी फैसले लेने चाहिए और हर एक व्यक्ति का जो है सही सही मार्गदर्शन करने के लिए सही फैसला होना ही जग कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। उत्तरदायित्व इस बात की ओर इंगित भी करता है कि नौकरशाही की भी जो है जवाबदेही होनी चाहिए कि वह क्या करती है और क्या नहीं करती है। संसदीय शासन प्रणाली ऐसे शासन प्रश्नों एवं वाद विवादों, बहसों और वजह अनुमोदन कमेटी की संसद के अन्य तरीकों के माध्यम से किया जाता है। कार्यपालिका अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि यह प्रक्रिया बहुत से कारणों से चलते जो है प्रभावहीन सिद्ध हुए हैं।
यानी ये सारे क्रियाएं चलाई गई है, लेकिन इसका प्रभाव जो है देखने को नहीं मिला है। चर्चा ये प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता, चरित्र में गिरावट, संसदीय प्रणाली की, सरकार का कैबिनेट प्रणाली की परिवर्तन, राजनीति का अपराधीकरण और समाज का विघटन इसके प्रभावशील होने का मुख्य कारण माना जाता है। यानी बात वही सब आ गई जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि कहीं भी जो गुणवत्ता और चरित्र में गिरावट आ गई है प्रशासन में, जिसकी वजह से जो है इसकी जो गुणवत्ता नष्ट हो गई है। संसदीय शासन प्रणाली, सरकार जो है कैबिनेट जो है प्रणाली में परिवर्तन और राजनीति में अपराधीकरण हो जाने के कारण इन चीज़ों में जो है बहुत गिरावट आया है। और इवन कि लोगों की विचारधारा भी चेंज हुआ है राजनीतिक के रिगार्डिंग। लोग आज जो है कोई भी राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। इसका कारण मात्र यही होता है कि वो सोचते हैं कि राजनीतिक में जो है कई मानने में बहुत से गलत लोग रहते हैं। तो चलिए, ये तो लोगों की विचारधारा है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। दूसरी बात यही आता है कि उत्तरदायित्व के सरकारी निर्णय और कानूनों को जो है न्यायिक समीक्षा के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जाता है। यानी यहाँ पर जो है न्यायिक समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सरकारी निर्णय और कानून की जो है न्यायिक समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नागरिकों की जो है जन सामान्य की हितों की अवहेलना करने वाले तत्कालिक मुद्दे पर जो है जनहित याचिका यानी PIL, जिसके विषय में हम पिछले चैप्टरों में कर चुके हैं, जिसको आपको समझना चाहिए कि जनहित याचिका होती क्या है, के माध्यम से जो है न्यायिक हस्तक्षेप की मांग किया जा रहा है। और इस प्रकार की कार्यप्रणाली जो है कई जगहों पर विकसित भी हो चुकी है, जैसे न्यूजीलैंड, कर्नाटक, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी लोकप्रिय काफ़ी हो चुका है। यानी जनहित याचिका जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी जो है डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। हाल ही के कुछ समय में उत्तरदायित्व का एक प्रभावशाली माध्यम जो है नागरिक चार्टर के प्रणाली आया है। यानी नागरिक चार्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से जो है काफ़ी चीज़ों को जो है उत्तरदायित्व को बताया जा सकता है। इस विचार की उत्पत्ति नागरिकों की नौकरशाही संस्कृति से बदल कर उनके स्थान पर जो जनहितैषी व्यवहार की शामिल करने के लिए की गई है। देखिए, जनहितैषी यानी जनता का जो है व्यवहार और जनता के लिए किया गया अच्छा कार्य इसी व्यवहार के अंतर्गत आता है, ताकि पुराने उदासीन और अनौपचारिक और संवेदनशील व्यवहार को उनमें शामिल न किया जा सके। पुराने समवर्ती मूल्य के स्थान पर आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य को नौकरशाही में स्थान दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से एक उत्तरदायित्व शासन प्रणाली के लोक सेवाओं के निम्न क्रियात्मक व्यवहारिक विशेषता को यहाँ पर जो है उजागर किया गया है। और ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि शासन प्रणाली में लोक सेवाओं की क्या जो व्यवहारिक विशेषताएं होती है। सबसे पहली बात तो यही आता है कि उपलब्धियों अभिमुख्य व्यवहार होना चाहिए। अधिकारियों का जो है न्याय संगत प्रयोग होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। अधिकारों का जो है न्याय संगत प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोगों की खुशहाली के लिए सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। निर्णय लेते समय तर्क और अनुभव का सदैव प्रयोग करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जो कोई भी विशेष पद पे होते हैं वो निजी नहीं होते हैं, वो सार्वजनिक होते हैं। इसलिए सार्वजनिक विचारधाराओं से ही आगे अपना फैसला लेना चाहिए। अपनी निजी जो है विचारधारा में उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि निजी एक व्यक्तिगत जो विचारधारा होती है वो स्वयं की भलाई के लिए ही होती है, प्रजा और जन कल्याण के लिए कभी नहीं हो सकती है। अपने दायित्व को पीछे हटने की पहचानना और दंड देना, ये भी प्रावधान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय सीमा में नीति और योजनाओं को लागू करना भी बहुत जरूरी है। आपने देखा भी होगा, कोई भी सरकार यही बनती है तो यही बात कहती है कि जो भी हमने वादा किया है उस पर हम जो है बहुत संभव मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन देखा जाए जैसे उनको शासन प्राप्त हो जाती है वो जनता को भूल के जो है अपने ही जो जीवन को यापन करने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है किसी भी जो है मिनिस्टर के लिए, कोई भी जो है जनता की भलाई करने वालों के लिए। कहते हैं दूसरी बात आता है चरित्र बल, योग्यता और लोक सेवाओं की लगन एवं व्याप्ति। कोई भी अगर बड़े लोग बनते हैं तो उनमें चरित्र बल होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए और लोक सेवाओं के लगन व्याप्त होना चाहिए। देखिए, लोक सेवा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो होता है लोगों की भलाई होती है। अगर आप लोगों की भलाई करोगे तो जनरल सी बात है दोबारा जो है लोग आपको ही चुनेंगे और आपको ही शासन पे बैठाएंगे, क्योंकि जनता भी यही चाहती है कि उनके भलाई के लिए कदम उठाया जाए। अगर बात यहाँ पर एक कदम उठाने की बात किया जा रहा है तो आपको पता है कि हमारे देश में जो शासन चल रही है उनका ये विचार था कि हम जो है जनता के लिए करेंगे, जनता के लिए शासित करेंगे। लेकिन अभी महंगाई ने इतना कमर लोगों के तोड़ दिया है कि हम तो सारी बातें भूल चुके हैं कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, ये तो सपने से हो गए हैं। आज आम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं मिला है। आम गरीब जो है अभी भी रो रही है, त्रास रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम डेवलपमेंट कंट्री बन चुके हैं,
हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी बढ़ गया है। अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया होता तो आम जनता को इतनी तकलीफ नहीं होती और भारत में दिन पर दिन जो है गरीबों की संख्या नहीं बढ़ती। तो सरकार को इस बात पे मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर भारत में जो है इतनी जो है महंगाई किस लिए बढ़ रही है। सरकार को देखिए, एक बात आपको याद रखना चाहिए कि ना तो हम मोबाइल या टेलीविज़न से या हम कुछ भी इससे हमें नहीं मिलने वाला है। हमें जब तक वक्त की रोटी पेट में नहीं जाएगा तब तक हमारा जीवन नहीं चल सकता है और ये हर एक गरीब, हर एक इंसान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सरकार बाहर जाके देखे और कुछ एक आम इंसान बन के देखे और कोई सामान खरीद के देखे, उनको ये समझ में आ जाएगा कि आम जनता किस प्रकार जो है अपनी आंसू बहा रही है और सिर्फ सरकार को कोस रही है। तो ये बहुत बड़ी ज़रूरी बात है जो हर एक प्रशासन वाले व्यक्तियों को समझने की आवश्यकता है। दूसरे से व्यवहार करते समय ईमानदारी, मित्रता और निष्ठा रखना चाहिए। कोई भी ये बात बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरे के साथ व्यवहार हमारा किस प्रकार का होता है। निपुणता और अनुकृष्टता से जो है निरूपिता कार्य की क्षमता मानी जाती है। तो ये गुड गवर्नेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जिसको हर एक सरकार को इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रत्येक देश में कई प्रकार की जो है स्थानिक एवं कानूनी व्यवस्थाएं होती है ताकि उत्तरदायित्व प्रशासन की विशेषताओं की जो है व्यापकता से सुरक्षित किया जा सके। उदाहरण के तौर पर भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय श्रमिक आयोग, अल्पसंख्यक व मानव अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं भारत के लेखा महानियंत्रक जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है। और नौकरशाही में राजनीतिक, कानूनी, संवैधानिक और व्यवस्पारक जो है वचनबद्धता का प्रबंधन करने के लिए किए गए प्रयास है। ये शासन की पक्षपाती प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, अलगवाद और जो गोपनीयता को दूर करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य प्रशासन गरीबों के प्रति संवेदनशील, लिंग अनुपातों के प्रति संवेदनशील तथा इससे भी बढ़कर जन सामान्य की जो है परेशानियों के प्रति संवेदनशील बनाना है। देखिए, ये बात जो मैंने अभी डिस्कस किया तो वही बात यहाँ पर आता है, गरीबों के प्रति संवेदनशील। गरीब क्यों व्यक्ति होते हैं? जब 2 वक्त की रोटी वो नहीं कमा पाते हैं तो कहते हैं सरकार को ये चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि फ्री क्या चीज़ कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उनको ये देना चाहिए कि भारत में जो इतनी महंगाई बढ़ गई है उन पर जोरदार जो है अब प्रहार करने की ज़रूरत है और हर जनता तक भोजन को पहुंचाने की आवश्यकता है। और भोजन उनके 5 किलो से देने से कुछ नहीं पहुंचने वाला है। अगर वो अच्छे साधारण बनाते हैं, अच्छे रूल रेगुलेशन बनाते हैं जिसमें हर एक व्यक्ति को जो है काम मिल जाता है और हर व्यक्ति जो है गरीबी अनुपात से ऊपर उठता है, तो हो सकता है कि हमारा भारत देश का जो है सदैव विकास हो जाए। इसका उद्देश्य लोक सेवाओं के वंचित कार्यों को, व्यवहारों को कम करना है, उनकी क्षमता व सत्यनिष्ठता को बढ़ाना है। सरकार ने भी अपने स्तर पर ऐसे उपायों की शुरुआत भी की है जिसे जो है प्रशासन में उत्तरदायित्व की कार्रवाइयों को जांच किया जा सके। यानी सरकार ने बहुत से ऐसी चीज़ बनाई है जिसका सरकार के जो है कार्यों को जांच किया जा सकता है। चलिए, ये जो है पारदर्शिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार के ऊपर पारदर्शिता रखना भी जरूरी मान्यता रखता है। अब देखते हैं कौन कौन से पारदर्शिता यहाँ पर सरकार के प्रति जागरूक बनाता है। इस संबंध में निम्नलिखित ध्यान में रखा जाता है कि पहला तो यही कि परियोजना द्वारा प्रबंधन यानी MBO मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव, जन शिकायतों को दूर करने के लिए मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। सूचना के अधिकारों को स्वीकार करना, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं शासन करना, सत्ता का जो है लोकतांत्रिकरण और विकेंद्रीकरण करना, हश्र में खड़े समूहों का सशक्तिकरण और विशेषकर महिलाओं के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य प्रतियोगिता, विभिन्न प्रकार के कानूनी नियमों और विनियम की जो है समीक्षा करना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। स्थानीय सरकार के स्तर पर उत्तरदायित्व की स्थापना करने और हाशियों में खड़े समूहों का समर्थन करने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने 1992 में जो है 73 और 74वें संविधान संशोधन की पारित किया गया था, जिसके विषय में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 73 आर्टिकल और 74 आर्टिकल संशोधन के लिए, ठीक है। जिसमें जो है सामान्य अन्य चीज़ों को साथ महिलाओं को जो है 33% आरक्षण और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण किया गया था। इसके साथ ही विकेंद्रीकरण विकास योजना, वित्तीय शक्तियों में वृद्धि तथा स्थानीय निकाय को अधिक वित्तीय शक्ति प्रदान की गई थी। इस प्रकार विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण को जो विकासात्मक प्रशासन का मूल्यधार बनाया गया था। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को जो है 79 मंत्रालय एवं विभाग नागरिकों चटर के रचना के संचालित कर रहे हैं। ये चटर निम्नलिखित कारण विवरण देते हैं। पहला तो यही बात देते हैं कि सेवाओं की जो है समय सीमा की और मानदंडा के ऊपर जो है अपने विचारधारा रखते हैं। शिकायतों को कम करने के ढंग देखते हैं और चटर को लागू करने की जांच प्रणाली की स्वतंत्र समीक्षा के निर्धारित करना इनका सबसे बड़ा दायित्व बन गया है।
केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में लोक शिकायतों और शीघ्र जो है निस्तारण हेतु विशेष संस्थाओं एवं इकाई की स्थापना भी की गई है। इसका उद्देश्य है अधिकारी कल्याण कार्य का ध्यान न देना, मामलों के निस्तारण में अत्यधिक समय लगने पर जो है अधिकारियों का जो है सहनशील पूर्ण रवैये पर अंकुश लगाना। देखिए मैंने कहा ना, हर चीज़ का रूल रेगुलेशन बना हुआ है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो होती है कागजी बातों में ही होती है, लेकिन अगर वास्तविकता में अगर आप चले जाओ कुछ बनवाने के लिए तो उसको कहते हैं 2-4 महीने तो लग ही जाते हैं। यानी जब तक आपके चप्पल नहीं घिसेंगे तब तक का काम भी आपके पूरे नहीं होंगे, और काम भी पूरे तब होंगे जब आप उसके जेब गर्म करोगे। तो ये सारी बातें बनी हुई है, लेकिन इसका सरकार की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाई जा रही है। शासन तंत्र में उत्तरदायित्व के बहन की भूमिका खुली और पारदर्शी होनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि भूमिका खुली और पारदर्शी होना चाहिए। किसी भी निर्णय या कार्य में पारदर्शिता न लाने पर उसमें जो है भेदभाव की भूमिका होने के आदेश रहता है, यानी अंदेशा तो रहता है कि कहीं उसके भेदभाव न किया गया हो। पारदर्शिता से जो है पक्षपात की संभावना कम रहती है, सभी को पूर्वाग्रह के जो है मुक्ति मिलती है। भारतीय संसद ने सभी नागरिकों के लिए सूचना प्राप्ति के अधिकार की व्यवस्था भी किया है, और केंद्रीय मंत्रालय और विभाग खूब प्रचार प्रसार के साथ ऐसे काउंटर खोल कर लोग शिकायतों को आमंत्रित भी करते हैं। कहते हैं बहुत से रूल रेगुलेशन बनाई जाती है, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, जब इसको आप प्रयोग करोगे तो आपको स्वयं ही इस बात का आभास हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसको देखना मत भूलना। हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।